अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केसीआर पर रेवंत रेड्डी ने की जमकर तनकीद। कृष्णा गोदावरी नदियों के प्रोजेक्ट्स को लेकर हुई गलतियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना रियासत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं साबिक सीएम के चंद्रशेखर राव। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इरिगेशन मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी का दावा। कांग्रेस के खिलाफ ममता बनर्जी के रिमार्क्स का केटीआर ने किया सपोर्ट। कहा, बीजेपी को सेंटर में इख्तिदार हासिल करने से सिर्फ इलाकाई पार्टियां ही रोक सकती हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के ऐलान की सेकुलर पार्टियों की तरफ से मजम्मत का सिलसिला जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड देना खुद अवार्ड की है तौहीन। हल्का असम्बली बहादुरपुरा में 6 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का असदुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज सीटों पर जीत की जाहिर की उम्मीद। और प्रियंका गांधी को सरकारी तकरीब में मदऊ करने की मुखालिफत पर रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने कविता पर की तनकीद। कहा, शराब रानी को कांग्रेस पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सीएम रेवंत रेड्डी ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कृष्णा और गोदावरी नदियों पर बनाए गए प्रोजेक्ट्स को पार्टीशन एक्ट 2014 मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट वाटर रिसोर्सेज बोर्ड के हवाले उसके मुताबिक हवाले किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि सेंटर की जानिब से पार्टीशन एक्ट का हर वो पहलू लिखा गया है, उसके बावजूद मुझसे ही सवाल किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब मरकजी हुकूमत अपनी गलतियों का इल्जाम कांग्रेस पर डालने की कोशिश कर रही है। तकसीम एक्ट के मुताबिक ही कृष्णा और गोदावरी पर प्रोजेक्ट्स हवाले किए गए। आंध्र प्रदेश रीआर्गनाइजेशन एक्ट 2014 రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టము 2014 మీకు గుర్తు చేయాలని ఈ పునర్విభజన చట్టంలో పార్ట్ 9 మేనేజ్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ సెక్షన్ 84లో స్పష్టంగా కృష్ణా నది మీద గోదావరి నది మీద ఉన్న ప్రాజెక్టులను రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డుల ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి స్వాధీనం పరచడానికి అవసరమైన విధి విధానాలు ఈ రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టంలో సెక్షన్ 84, సెక్షన్ 85, సెక్షన్ 86, సెక్షన్ 87 ఆల్మోస్ట్ సెక్షన్ 88, 89 వరకు 84లో మొదలయ్యి 89 వరకు ఈ సెక్షన్లలో స్పష్టంగా కృష్ణా గోదావరి నదుల మీద ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నిర్మించిన ప్రాజెక్టులను అన్నిటిని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి స్వాధీనం చేయడానికి విధి విధానాలను ఖరారు చేయడమే కాకుండా ఈ ప్రాజెక్టుల యొక్క మేనేజ్మెంట్ కోసము, నిర్వహణ కోసము, కొత్త ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం కోసము ఎవరెవరు ఉండాలనేది కూడా ఇందులో రాసిండ్రు. దీంట్లో మినిస్టర్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్పర్సన్గా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ మెంబర్గా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇంకొక మెంబర్గా, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము జలశక్తి మంత్రి చైర్మన్గా ఆమోదం చెందింది. ఈ చట్టం ఇట్లా రావడానికి కారణం చంద్రశేఖరరావు గారని మా ప్రభుత్వం మొట్టమొదటి ఆరోపణ చేస్తుంది. అదే BRS पार्टी सदर और तेलंगाना के साबिक CM KCR के लिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनके दामाद को असेंबली मीटिंग में लाने का चैलेंज दिया। ఇక్కడ ఎన్నికల రోజు పోలింగ్ రోజు పొద్దునే నాగార్జున సాగర్ భూభాగం మొత్తం తెలంగాణలో ఉంది. నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు కంప్లీట్గా తెలంగాణ స్వాధీనంలో ఉంది. కనీసము శ్రీశైలం అన్న సగం వాళ్ళ చేతిలో ఉంది, సగం మన చేతిలో ఉంది.
జగన్మోహన్ రెడ్డి పోలీసులు తుపాకులు వేసుకొని నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ మీదకి వచ్చి ప్రాజెక్టును హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకురు. ఈ సన్నాసి రండా జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలంగాణలోకి వచ్చి నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టును ఆక్రమించుకుంటే నోట్లకెళ్ళి మాట వెళ్ళలే. రండ పనులు చేసింది లొంగిపోయింది నువ్వు చంద్రశేఖరరావు. నువ్వు రండగాడు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చి నాగార్జున సాగర్ మీద తుపాకులు పెట్టి ప్రాజెక్టును హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుండు. అదే కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చి చూడమను, ఇవాళ రమ్మను, వచ్చి నాగార్జున సాగర్ మీదకి రమ్మను జగన్మోహన్ రెడ్డిని. నువ్వు రండగాడివి, జగన్మోహన్ రెడ్డికి ప్రాజెక్టును తాకట్టు పెట్టి తుపాకులు తీసుకొని వచ్చి నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ను ఆక్రమించుకుంటే పల్లెత్తు మాట మాట్లాడలేదు. నువ్వు పోయి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రాజెక్టులను హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడానికి నిధులను కేటాయించినోడు నువ్వు వచ్చి మమ్మల్ని బదనాం చేస్తావా, మా మీద మాట్లాడతావా? వాస్తవాలు ఇట్లుంటే అబద్ధాలతోని అధికారం కోల్పోయిన నిరాశ నిస్పృహలతోటి ఈరోజు మమ్మల్ని బదనాం చేసే కార్యక్రమం పెట్టిండు. అందుకే నేను సూటిగా ఈ ఆధారాలు మీ ముందర చెప్పి మీ ముందర మాట్లాడితే రేవంత్ రెడ్డి సెక్రటేరియట్లో సమావేశం పెట్టి చాలా మాట్లాడిండు. ఆయన కథ ఏంది, ఆయన కమామిస్ ఏంది అని ఆయన మాట్లాడతాడు. అందుకే నేను సూటిగా ఈరోజు మంత్రివర్గ సమావేశం అవుతుంది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎప్పటి నుంచి ఉంటాయో సాయంత్రం వరకు మీకు చెప్తాము. అసెంబ్లీ సమావేశాలల్లో వైట్ పేపర్ ప్రాజెక్టుల మీద రిలీజ్ చేస్తాం, ప్రాజెక్టుల హ్యాండ్ ఓవర్ మీద చర్చ పెడతాం. 48 గంటలు నువ్వు కోరుకుంటే ఇంకెక్కువ కావాలన్నా తలుపులు మూద్దాం, భోజనాలు అక్కడనే పెడతాం, బట్టలు తెచ్చుకో, మేము వస్తాం. మామ అల్లుడు మీరు ఇద్దరు రాండి, లేకపోతే ఎంబడి కొడుకుని తెచ్చుకోరు, అవతల మీ బిడ్డ ఉంటే ఆమెను కూడా ఉమ్మడి సమావేశాలు పెడతాం. ఒకవేళ చర్చ చేద్దామంటే శాసన మండలి శాసనసభ ఉమ్మడి సమావేశాలు ప్రత్యేకంగా ప్రాజెక్టుల మీద జలాల మీద చర్చ పెడతాము. మాకెవ్వరు లేరు, నేను మా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇద్దరమే మాట్లాడతాం. సంబంధిత శాఖ మంత్రిగా వారు మాట్లాడతారు, ముఖ్యమంత్రిగా నేను మాట్లాడతా. మీకు పూర్తిగా అవకాశం ఇస్తాం. ఒక్క నిమిషం కూడా నీ మైక్ కట్ చేయం చంద్రశేఖరరావు, రా. ప్రతి డాక్యుమెంట్ తీసుకొని నేను మా మంత్రివర్యులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మేము మాట్లాడతాం. వాస్తవాలను ప్రజలకు చెప్పుదాం. ఎవడు ద్రోహి, ఎవడు దొంగ, ఎవడు లొంగిండు, ఎవడు వంగిండు, ఎవడు ప్రాజెక్టులను తాకట్టు పెట్టిండు, ఎవడు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఈ తెలంగాణకు అత్యంత ద్రోహం జరిగింది. वहीं इरिगेशन मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने भी सीएम रेवंत रेड्डी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साबिक सीएम केसीआर पर तेलंगाना के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया। చాలా కన్వీనియంట్ గా అసలు నిజంగా తెలంగాణలో ప్రతి పౌరునికి తెలవాలి, డైరెక్ట్ గా నేరుగా కేసీఆర్ తెలంగాణ మీద కుట్ర చేసిండు. 5 ఆగస్ట్ 2020కి అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ కి భారత ప్రభుత్వం వాటర్ రిసోర్సెస్ మినిస్టర్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ని డిస్కషన్ గురిస్తే ఈ రాయలసీమ లిఫ్ట్ టెండరు 10th ఆగస్ట్కి పూర్తయిందని చెప్పి వీళ్ళు పోస్ట్పోన్ చేసి ఆ టెండర్ పూర్తయి అగ్రిమెంట్ పూర్తయి పనులు మొదలైనాక అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ పెట్టుకుంది. ఎందుకంటే ముందు మీటింగ్ పెట్టుకుంటే ఏమైనా స్టేటస్ కో ఆర్డర్ ఇస్తే ఈ రాయలసీమ లిఫ్ట్ చేపట్టేది అవకాశం లేదు. पीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि सिर्फ इलाकाई सियासी पार्टियों के पास ही आइंदा लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी को मरकज में इख्तिदार हासिल करने से रोकने की ताकत है। केटीआर ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के बारे में मगरबी बंगाल की सीएम और ममता बनर्जी के रिमार्क से मुत्तफिक हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास पैसा है तो उसे वाराणसी में इलेक्शन लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए, और कांग्रेस के पास अपनी इमेज बरकरार रखने का कोई मौका नहीं। कांग्रेस पार्टी का ही रवैया है जिसकी वजह से इंडिया अलायंस टूट रहा है। कांग्रेस पार्टी को इस पर गौर करने की जरूरत है। मोदी सरकार की जानिब से बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न देने के ऐलान पर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अडवाणी ने जहां भी रथ यात्रा की वहां फसादात हुए। उन्होंने कहा कि अडवाणी को भारत रत्न अवार्ड देना खुद अवार्ड की तौहीन है। 23 सितंबर से 5 नवंबर 1990 में, और जो जनरेशन जी जिसको कहते हैं उन नौजवानों के लिए बता रहा हूं कि उस वक्त लाल कृष्ण अडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए। तो ये रथ यात्रा गई 23 सितंबर से 5 नवंबर 1990 तक। अहमदाबाद से शुरू हुआ, हरिद्वार, बिजनौर, तो उसमें जहां कहीं भी ये इनकी रथ यात्रा गई
बेंगलुरु, कोलार, चन्नापटना में 30 लोगों की मौत हुई फसादात में। देवानगिरी में 1, रामानगरम में 2 नवंबर को 2 लोगों की मौत हुई। बिदर में 7 लोगों की मौत हुई अक्टूबर 5। हैदराबाद में उस वक्त बदतरीन फसाद हुआ हिंदू मुसलमानों का। तो जहां कहीं भी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गई, वहां पर इन तमाम मुकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ, इंसानियत की मौत हुई। और अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत उनको इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाज रहे हैं। आप बताइए नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या पैगाम दे रही है। और इससे बढ़कर लाल कृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे तो मोहम्मद अली जिन्ना की खबर पर जाकर उन्होंने जिन्ना की तारीफ में कलमात लिखे थे। और यही आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आए दिन भारत के गयूर मुसलमानों को बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अरे कम से कम तुम अवार्ड देने से पहले ये तो देख लेते कि ठीक है इतने लोग मरे, तुम भूल गए, इतने लोगों की मौतें हुई, बच्चे यतीम हुए, हमारी बहनें चाहे हिंदू हो मुसलमान हो बेवा हो गई, कई घर उजड़ गए। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली बहादुरपुरा के जहानुमा डिवीज़न में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेन व दीगर कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा एमएलए मोहम्मद मुबीन, एमएलसी मिर्ज़ा अहमद बेग, मकामी कारपोरेटर्स, मजलिस के सरगर्म कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि इफ्तिताह अंजाम दिए गए तरक्याती काम जल्द पूरे हो जाएंगे और आवाम को हो रही परेशानी का सद्जवाब होगा। असम्बली हल्के बहादुरपुरा में और बहादुरपुरा असम्बली हल्के में जहानुमा बल्दी डिवीज़न में आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 2 स्टॉर्म वाटर ड्रेन के बॉक्स ड्रेन के कामों का इफ्तिताह किया गया है। एक ईगलकुंटा से मुस्तफ़ा नगर और मुस्तफ़ा नगर से मोहम्मदिया कॉलोनी तक, तो ये दोनों बॉक्स ड्रेन जाकर रमनसपुरा में संजय गांधी नगर रमनसपुरा के जो वहाँ पर बड़ी ड्रेन का काम चल रहा है वहाँ पर उसको मिला दिया जाएगा। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये दोनों काम ईगलकुंटा से मुस्तफ़ा नगर और मुस्तफ़ा नगर से मोहम्मदिया कॉलोनी तक ये दोनों बॉक्स ड्रेन का काम जब तकमील को पहुँचेगा, और मुझे उम्मीद है कि बरसात के मौसम के शुरू होने से पहले दोनों काम मुकम्मल हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम इलाक़ों में आवाम को बड़ी राहत होगी, क्योंकि हालिया सालों में जब कभी बारिश होती तो इन इलाक़ों में महलों में पानी रुकता और बाज़ मुकामात पर किसी घर में पानी भी चले जाता। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली को, मुताल्लिक़ा अराकीन बल्दिया को और मौजूद सदर मोतमदीन अराकीन को कि उनकी नुमाइंदगी पर और उनकी मेहनत पर ये काम शुरू हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल भी किए जाएंगे। और जहाँ जहाँ भी तरक्याती कामों की ज़रूरत है, चाहे वो सीमेंट रोड हो या स्टॉर्म वाटर ड्रेन हो या सीवरेज लाइन हो या फिर रोड वाइडनिंग का मसला हो, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला देखेंगे आने वाले 1 या 2 हफ्ते में बहादुरपुरा और याकुतपुरा में रोड वाइडनिंग के कामों का आगाज़ होगा। और ख़ास तौर से बहादुरपुरा असम्बली हलके में फलकनुमा बस डिपो से लेकर वट्टापल्ली तक जो रोड वाइडनिंग की बहुत ज़रूरत है वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अनक़रीब में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये इंजन बौली से लेकर वट्टेपल्ली तक वहाँ पर निशानदेही कर दी गई है कि कितनी रोड वाइडन होगी, तोसी होगी, चौड़ा किया जाएगा। तो उसके लिहाज से गवर्नमेंट वहाँ पर उनको चेक भी देगी। और हमारी ज़रूरत है कि जल्द से जल्द रोड वाइडनिंग का काम यहाँ पर भी हो, ताकि ट्रैफिक की आमदोरफ्त में आसानी पैदा हो सके लोगों को। मजलिस की कोशिश यही है कि तरक्याती काम अंजाम दिए जाएँ। हमने जो आवाम से वादा किया उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ, ख़ास तौर से हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की आवाम से, कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत रखें, अपने इत्तेहाद को और मजबूत करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर करने की कोशिशें शैतानी ताकतें करेंगे।
और इनका एक ही मकसद है कि आपके इत्तेहाद को कमज़ोर किया जाए ताकि इनकी इनफरादियत और इनकी अना को तस्कीन मिल सके। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने आने वाले लोकसभा इलेक्शन में इस उम्मीद का इजहार किया कि हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से लोकसभा सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अवाम जीत दिलाएंगे। मैं तमाम अवाम से अपील करता हूँ, ख़ास तौर से हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की अवाम से, कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत रखें, अपने इत्तेहाद को और मजबूत करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर करने की कोशिशें शैतानी ताकतें करेंगे और इनका एक ही मकसद है कि आपके इत्तेहाद को कमज़ोर किया जाए ताकि इनकी इनफरादियत और इनकी अना को तस्कीन मिल सके। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत रखिए और मजलिस आपकी एक सियासी आवाज़ है, आपकी एक सियासी क़यादत है और पूरे वतन अज़ीज़ में आप देखते हैं कि केरला, आसाम और सरज़मीन दक्कन पर आपके इत्तेहाद की मिसालें दी जाती हैं। तो अपनी इत्तेहाद को मजबूत रखिए। पार्लियामेंट में आपकी एक आवाज़ है जो बेबाक तरीक़े से आपकी तकालीफ को, आपके मसाइल को, आपके दिलों में और आपके जहनों में जो तकलीफ़ है उसको मजलिस पार्लियामेंट में बयान करती है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट बल्कि औरंगाबाद और किशनगंज से भी इंशाअल्लाह ताला इस बार पार्लियामानी इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आप अपने वोटों से, दुआओं से अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर कोंडा सुरेगा ने बीआरएस एमएलसी की कविता पर शदीद तनकीद की है। दरअसल के कविता ने कल सीनियर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के खिलाफ एहतजाज करने की बात कही थी। साथ ही 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर स्कीम शुरू करने को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी पर भी सवाल उठाए थे। इस पर मिनिस्टर कोंडा सुरेगा ने कविता से जानना चाहा कि केटीआर के बेटे हिमांश ने किस हैसियत से भद्राद्री सीताराम चंद्र स्वामी की दिव्य शादी में रेशम के कपड़े तोहफे में दिए थे। कोंडा सुरेखा के मुताबिक बेहतर होगा कि कविता कांग्रेस सरकार की गैर वाज़ेह तनकीद करने के बजाय अपना मुंह बंद रखे। उन्होंने कविता को शराबरानी करार देते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। कोंडा सुरेखा के मुताबिक हम सभी जानते हैं कि तेलंगाना आंदोलन में शामिल होने से पहले वो अमेरिका में क्या कर रही थी। ప్రభుత్వ నిధుల దుర్వినియోగం గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు మీకు అస్సలు లేదని చెప్తా ఉన్నాను। ఈరోజు 100 కోట్ల 200 కోట్లు పెట్టి మీ సొంత ఫ్లైట్ కొనుక్కునే స్థాయికి మీరు ఎట్లా ఎదిగారు అని అడుగుతా ఉన్నాను। అమెరికాలో అంట్లు దోమికున్నటోళ్ళు వచ్చి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజల సొమ్మును దోసుకొని తిని కోట్ల రూపాయలు కోట్లకు పడగలెత్తి ఈ రోజు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసింది మీరు కాదా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నారు। కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈ రోజు ప్రజలు విశ్వసించారు, మిమ్మల్ని బీజేపీ పార్టీని నమ్మలేదు కాబట్టి మీరు చేసే మోసాలు గుర్తించారు కాబట్టి మీరు చేస్తున్న ప్రజాధనం యొక్క దుర్వినియోగాన్ని గుర్తించారు కాబట్టి పేదల గురించి పట్టించుకోవడం లేదు కాబట్టి ఈ రోజు పేదల పాలన అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారానే అవుతుందని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చారు। మళ్ళీ కూడా పార్లమెంట్ ఎన్నికలు రాబోతా ఉన్నాయి। నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి కవిత గారిని చెప్తా ఉన్నాను, అమ్మ నిలబడు, మళ్ళా నిజామాబాద్ నుంచి నిలబడతావా, ఒకవేళ ఆడ ఓడిపోయినా అని చెప్పి భయపడి ఇంకో దగ్గర నుంచి నిలబడతావా, ఎక్కడి నుంచి నిలబడతావో నిలబడు తల్లి, ఈసారి నిన్ను కూడా ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఈ తెలంగాణ ప్రజలు ఓడగొడతారు। మా మీద కామెంట్స్ చేసే ముందు ఒక్కసారి మీ వెనక్కి తిరిగి మీ వీపు మీరు చూసుకుంటే బాగుంటుంది। ఎందుకంటే మీరు ఎన్ని చేశారో ప్రజలకు తెలియకుండా మాకంటే ఎక్కువ మీకే తెలుసు కాబట్టి మీకు మాట్లాడే హక్కు లేదు। దయచేసి దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టుగా ఉంది మీరు మాట్లాడితే।
IAS ऑफिसर अम्रपाली काटा को हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड यानी HGCL के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये फैसला HMDA कमिश्नर दाना किशोर ने लिया, जिन्होंने इस ज़िम्मन में ज़रूरी अहकामात भी जारी कर दिए हैं। अम्रपाली अब MD के तौर पर HGCL के मैनेजमेंट और देखरेख की जिम्मेदारी संभालेंगी। इसके अलावा वो आउटर रिंग रोड इंचार्ज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और स्पेशल कलेक्टर की जिम्मेदारियां भी निभाएंगी। तेलुगु मेगा स्टार चिरंजीवी को पद्म विभूषण अवार्ड देने के ऐलान के बाद CM रेवंत रेड्डी ने उन्हें मुबारकबाद दी है। इस ज़िम्मन में चिरंजीवी ने दावत का एहतमाम किया था। इस दौरान CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि चिरंजीवी के लिए अवार्ड हम सभी के लिए फख्र का बास है। CM ने चिरंजीवी को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने पर खुशी का इजहार किया है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन कुमरम भीम आसिफाबाद यूनिट के तहत एक सालाना इजलास बउनवान उर्दू सहाफ़त और हमारी जिम्मेदारी मुनक्कद किया गया। इस इजलास में मेहमान ख़ुसूसी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती सदर MM माजिद, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुहिउद्दीन, नायब सदर सैयद अहमद जिलानी, काज़िन मोहम्मद अब्दुल मोहसिन के अलावा दीगर स्टेट अरकान मौजूद थे। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हुई हैं, और लेकिन गुज़िश्ता 20-30 साल के अरसे में इस दूर रफ्ता इलाके यानी काफ़ी दूर इलाका है शहर के कैपिटल से, उसके बावजूद आज उर्दू का चेहरा नज़र आ रहा है। बातें हो रही है उर्दू का सर्कुलेशन, अखबार, प्रिंट कापी आना। मैं समझता हूँ कि हर एक के फ़ोन में उर्दू अखबार ज़रूर आ रहा है, सॉफ्ट कॉपी ज़रूर आ रही है, लोग देख भी रहे हैं। रही बात एक कमज़ोरी की ये है कि उर्दू की जो पढ़ाई है, जैसा भी साथी बोल रहे थे, मगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, तेलुगु अखबार दुआएं जब तक नहीं होंगी हम आगे इस रियासत में आगे नहीं हो सकते। तो ये बताना है कि हमको हमारे तेलुगु वालों का साथ लेके ही आगे बढ़ना है। आज रहमान भाई, हालांकि तेलुगु ज़्यादा उनके साथ, उनके जो फॉलोअर हैं, मेंबर्स हैं, वो तेलुगु के रहते हैं, लेकिन उनकी मादरी ज़बान, उस प्यार मोहब्बत में वो आज यहाँ आए। उर्दू ज़बान की मोहब्बत, जो जिस तरीके से एक बेटा अपनी माँ से मोहब्बत करता है, यकीनन हम ये बात बताना है कि मैं यहाँ मसाजिद की कमेटी के लोग हैं, NGOs भी हैं और दीगर लोग भी हैं, ट्रस्ट वाले भी हैं और हमारी यूनियन के भी लोग हैं, और रहमान साहब हमारे वो भी यूनियन के हैं। ये कहीं ना कहीं महीने में या 2 महीने में एक जगह बैठकर कुछ बात करें कि हमको मुश्तरका मसाइल पर, ठीक है हमारा रास्ता अलग अलग ज़रूर है एक हद तक, लेकिन मंजिल में ये लफ्ज़ में आके अटक गया हूँ, इसके माने क्या होते हैं? तो यानी बताना है कि उर्दू की गज़ल है कि ज़बान कम्युनिकेशन का ज़रिया है, यानी कितना बेहतर आप अंदाज से करते हैं। उर्दू कैसे पैदा हुई? जब देखिए हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे, मुख्तलिफ़ किस्म की बोलियाँ थी। भैंसा पुलिस की जानिब से भैंसा मंडल के बलतोरा गांव और तमापुर गांव में हेलमेट से मुताल्लिक एक शोर बेदारी मुहिम के तहत बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में भैंसा ASP ने अपने स्टाफ, पुलिस ओहदेदारों के हमरा हिस्सा लिया। इस मौके पर ASP ने मकामी अफराद से खिताब करते हुए हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने पर और ज़रूरी दस्तावेज़ात जैसे लाइसेंस, RC बुक, इंश्योरेंस अपने साथ रखने की ताकीद की। ईदगाह मीर आलम हैदराबाद में जारी जामिअतुल मोमिनात की 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हो चुका है। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी दिन बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करने वाले साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने खिताब में तालीम की अहमियत और ख़वातीन का बेहतर माशरे में रोल पर बयान दिया। उनके अलावा दीगर मारूफ मुक़र्रिरीन ने भी अपने खिताबात किए। जदीद मसाइल शरिया पर मुअज़्ज़िज़ मुफ्तियात ने मुबाहिसा में हिस्सा लिया। उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से तशरीफ़ लाई हुई ख़वातीन का खैर मक़दम करते हुए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस 3-4 फरवरी को ईदगाह मीर आलम पर अज़ीमुश्शान पैमाने पर मुनक़्क़िद किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस से तक़रीबन ख़वातीन इस्तिफ़ादा हासिल की हैं, और ऐसे ख़वातीन जहाँ पर जिन्हें ऐसे इज्तिमात उनके लिए बहुत ही अहमियत के हामिल था, वो ख़वातीन ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि हमने यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखा है, इंशाअल्लाह ताला हम अपनी ज़िंदगी में उसको रुबए अमल लाएंगे।
میں اس موقع پر اس کامیاب انعقاد کے سلسلے میں جن جن حضرات نے دام درہم سخن ہر اعتبار سے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ بالخصوص یہاں حیدرآباد کے حلقے کے رکن پارلیمنٹ اور رکن اسمبلی اور کارپوریٹر صاحب اور محکمہ پولیس، خاص طور پر کیونکہ پولیس والے حضرات دن رات یہاں پر بیٹھ کر سارے انتظامات کو کامیاب انداز میں بنائے ہیں، اور محکمہ بلدیہ ہے، آب رسانی ہے، جتنے بھی محکمہ جات ہے میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح دوسرے مہمانان خصوصی ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے، اور جناب الحاج محمد محمود علی صاحب ہے، جناب مبین صاحب ہے، اور دیگر سعادت پیر بغدادی صاحب ہے، درویش محی الدین صاحب ہے، بہت سارے ہمارے مہمان مرد حضرات ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خواتین جنہوں نے بیرونی ریاست سے آئی ہے جو خطاب کرنے کے لیے، میں ان کا بھی تہ دل سے جامعۃ المؤمنات کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر ذرائع ابلاغ، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جس خندہ پیشانی کے ساتھ اس دین کے کام کو لوگوں تک پہنچانے میں معاونت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہتر صلہ عطا کرے اور ان کو صحت عطا کرے۔ حلقہ اسمبلی بالکنڈہ کے بھیمنگل منڈل مستقر کے مدرسہ امدادیہ دارالعلوم بھیمنگل کا سالانہ جلسہ دستار بندی 10 فروری 2024 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء احاطہ مسجد نور بھیمنگل میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جلسے کے پوسٹرز کے رسم اجرا آج احاطہ مدرسہ امدادیہ دارالعلوم بھیمنگل میں انجام دی گئی۔ عامۃ المسلمین سے اس جلسے میں شرکت کی پرخلوص اپیل کی جاتی ہے۔ اس جلسے میں شرکت کرنے والے تمام خواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا، اور باہر سے آنے والے شرکاء کے لیے طعام کا بھی انتظام رہے گا۔ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن لمٹس کے علاقے تاڑبند چوراہے پر پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ایکٹیوا پر پیچھے بیٹھ کر جا رہی ایک خاتون بشرا بیگم کی جائے موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ ان کا شوہر محی الدین شدید زخمی ہو گیا، جنہیں علاج کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا گیا، جبکہ لاش کو بھی پوسٹ مارٹم کے غرض سے عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا گیا۔ حادثے کی اطلاع پا کر متعلقہ MLA محمد مبین نے متعلقہ کارپوریٹر محمد قادر کے ہمراہ مقام واقعہ پہنچ گئے۔ انہوں نے حادثے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ RTC بس کا بریک فیل ہونے سے یہ حادثہ پیش آیا۔ واضح رہے کہ تاڑبند چوراہے کے قریب میر عالم عیدگاہ میدان میں 2 روزہ خواتین کا اجتماع جاری ہے۔ اس کے باوجود ٹریفک پولیس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر موجود نہیں تھی۔ آج 3:30 بجے تاڑبند چورستے کے اوپر ایک RTC بس کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے ایک اسکوٹی پہ جا رہے تھے میاں بیوی، جو RTC کی بس ہے اس کو ٹکر دی۔ جیسے ہی وہ ٹکر دی وہ گر گئے، اور بس ان کے سر کے اوپر سے جانے سے وہ بشرا فاطمہ کا اسپاٹ پہ انتقال ہو گیا، اور محی الدین صاحب کو بہت زیادہ مار لگا، ان کو دواخانہ عثمانیہ کو شفٹ کیا گیا ہے۔ جیسے ہی صدر محترم نقیب ملت عالی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب میرا پارلیمنٹ کو اطلاع ملی، فوری صدر صاحب نے فون کیا کہ فوری وہاں پر جائیے۔ میں اور ہمارے متعلقہ کارپوریٹر جناب محمد قادر صاحب یہاں پر اسپاٹ پر آئے، اور ٹرافک کے CI صاحب سے اور SI سے یہاں کے جو بھی اسٹاف ہے ہم ان سے بات چیت کیے، اور یہاں پر بندوبست کے لیے پولیس اور ٹرافک کو بھی رکھا گیا ہے۔ میں خاص طور سے ٹرافک انسپکٹر صاحب سے اور ACP صاحب سے کہوں گا کہ جس طریقے سے یہاں پر برج کا کام چل رہا ہے اور ٹرافک تیز رفتار سے آ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ اقدامات کیا جائے، کیونکہ یہاں پر برج کا کام کرنے کی وجہ سے ٹرافک بھی جام ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے متعلقہ انسپکٹر صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ وہاں پر ٹرافک کا آپ لوگ بندوبست کیجیے۔ اس کے لیے جو بھی ذمہ دار ہے، جو RTC کے ڈرائیور، جو انہوں نے ایک گاڑی کو بھی مارا ہے، اور وہ بھی گاڑی ڈیمیج ہو چکی ہے، لہٰذا جو بھی کارروائی ہوگی، ابھی ہم متعلقہ انسپکٹر حبیب اللہ صاحب بہادرپورہ CI صاحب سے بات چیت کیے، اور اب یہاں سے میں CI صاحب کے پاس پولیس اسٹیشن جاؤں گا، اور تمام تفصیلات حاصل کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو
पूरी इत्तला दी जाएगी। शुक्रिया। इसके बारे में ट्रैफिक पुलिस को कुछ लेटर किए थे उनके जानकारी मिली या इंतजाम के लिए पुलिस ऑलरेडी यहाँ के इंतजाम के सिलसिले में और यहाँ के जो इज्तिमा के लोग हैं उन्होंने भी एक लेटर दिए हैं और मैं लाइन ऑर्डर को और यहाँ के ट्रैफिक के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको भी हम लेटर भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ आती है, तो लिहाजा हम यहाँ पर बंदोबस्त के लिए ऑलरेडी लेटर्स दे चुके हैं। खास करके यहाँ की आवाम का ये कहना है कि पुलिस अंदर है, लेकिन बंदोबस्त के लिए पुलिस को यहाँ से पब्लिक को जाने के लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई इंतजाम यहाँ पर तो लगाएंगे पुलिस का? अभी मैं वही CI साहब से भी वही बात किया ट्रैफिक के कि आप लोग अंदर ठहरने के बजाय रोड के ऊपर ठहर कर ट्रैफिक को कंट्रोल करके जो भी खवातीन आ रहे हैं उनको रोड क्रॉस करना उनकी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक को रोक कर जो इज्तिमा में शिरकत के लिए आए हुए हैं वो उनको बाहिफाजत रोड क्रॉस करवाने के लिए हम कहा गया है। शुक्रिया। चबूतरा पुलिस ने टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन के साथ मिलकर सड़क पर गांजा बेचने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 68 किलोग्राम गांजा, टोयोटा इनोवा कार, एक्टिवा बाइक, 5 सेल फोन भी जब्त किए हैं। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अहदेदार ने इस केस की तफसीली जानकारी दी। चबूतरा पुलिस स्टेशन के तहत में टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन की स्टाफ और टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया था। ये काम किया कि तकरीबन 70 किलो गांजा NDPS गांजा जो ड्राई गांजा सप्लाई हो रहा था वो रॉकेट को बरेस्ट करिए थे। और ये जो प्लेस हुआ अपर धूलपेट जाने के रूट में मंगलहाट के बॉर्डर में बिलाल मस्जिद नियर इमरान होटल के पास एक सस्पिशियस पर्सन्स ऑन इंफॉर्मेशन 2 सस्पिशियस पर्सन्स को अप्रहेंड किए थे। उनके इनोवा में ये जो बैग्स तकरीबन 70 किलो गांजा और उनके साथ जो ऑटो इनोवा था, इनोवा को सीज करे। उनके फ़ोन 5 फ़ोन उनके पास से दोनों के पास सीज करे। वो दोनों का नाम है मोहम्मद इसाक और इसामुद्दीन। ये इनफैक्ट ये मोहम्मद इसामुद्दीन और इसाक ये दोनों कज़िन्स है या मुमेरे फुफेरे भाई है। ये दोनों एक फर्नीचर शॉप में काम करते रहे। 7 मंथ्स बैक इनको एक राजू नाम का उड़ीसा का एक लड़का इनके पास काम करने आया और जो ये बिज़नेस को देख के इन बोला था इजी अर्निंग के लिए मेरे पास और अच्छा ये है इसाक। और ये इसमें इसाक को इसामुद्दीन अपने पायलट कर रहे थे। पायलट करके सामने वाले कुछ पुलिस है क्या क्लियर करके इनोवा में लाके वहाँ पे गुड जो भी है NDPS के धूलपेट से एक कस्टमर को इनके रेगुलर उनके वहाँ पे डिलीवरी देना चाह रहे थे। इतने में पुलिस का छापा हुआ, पकड़े गए। और जो जिसको बेचने चाह रहे थे वो भी इन्वेस्टिगेशन में है। अभी स्टेज में अपन वो बात उसका नाम वो भी है अपने इन्वेस्टिगेशन के रिवील नहीं कर सकते। और जल्द से जल्द जो भी है इसमें सबको अपन गिरफ्तार करेंगे। ये नहीं है वो जो इनको पहले जो डिलीवरी किया अपस्टैंडिंग है, इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेट क्लू है, हम उसको पकड़ लेंगे जल्द से जल्द। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केसीआर पर रेवंत रेड्डी ने की जमकर तनकीद। कृष्णा गोदावरी नदियों के प्रोजेक्ट्स को लेकर हुई गलतियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना रियासत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं साबिक CM के चंद्रशेखर राव। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इरिगेशन मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी का दावा। कांग्रेस के खिलाफ ममता बनर्जी के रिमार्क्स का KTR ने किया सपोर्ट। कहा बीजेपी को सेंटर में इख्तिदार हासिल करने से सिर्फ इलाकाई पार्टियां ही रोक सकती हैं। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के ऐलान की सेकुलर पार्टियों की तरफ से मजम्मत का सिलसिला जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड देना खुद अवार्ड की है तौहीन।
हल्का असम्बली बहादुरपुरा में 6 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का असदुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज सीटों पर जीत की जाहिर की उम्मीद। और प्रियंका गांधी को सरकारी तकरीब में मदऊ करने की मुखालिफत पर रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने कविता पर की तनकीद। कहा, शराब रानी को कांग्रेस पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। न्यूज़ में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।